हाँ ठीक है, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड इज गुड, आयरलैंड इज गुड। हमारे रिलेटिव्स भी उधर रहते हैं। वेदर थोड़ा सा ऐसे ही होता है। ठंडा। हम्म। वो पहले हम सोच रहे कि इंडिया से हम सीधा वहां जाएंगे, लंदन। हम्म। और लंदन से ट्रेन से हम स्कॉटलैंड जाएंगे। ओके, स्कॉटलैंड इज ब्यूटीफुल, बट वेदर वाइज जो है थोड़ा सा पुखा है बड़ा। रिलेटिव कह रहे थे कि लंदन से स्कॉटलैंड ट्रेन में ही जाना चाहिए, अच्छा लगता है। हम्म। व्यूज। फ्लाइट से जाओगे तो फिर मजा नहीं आएगा। यस। हाँ जी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, कॉन्टेक्स्ट मालूम है? गर्म हाँ। सूप ठंडा हो जाता है, हाँ। so you lose heat and you attain the temperature of the surrounding, so और जो heat is गरम सूप lost. होता है हाँ, उसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। वो डालते हैं उसके अंदर, क्या आता है वो, पर अगर ठंडा हो जाए वही सूप तो बड़ा बहुत गंदा लगता है वो। स्प्रेड होता है उसका जो सरफेस टेंशन होती है ना, तो अच्छा। वो वेटिंग होती है ना, जो मतलब स्प्रेड हो गया आपके तो टेस्ट बड पे आ जाता है वो, नहीं तो आपकी टेस्ट बड को वो कवर नहीं कर पाता। ये मतलब चाय भी ठंडी बड़ी गंदी लगती है। हाँ सेम, doesn't, is restricted to your some taste bud. Heat is lost and the hot body attains the temperature of the surrounding. Okay. This is the context. So the rate at which the temperature falls, right? Obviously, it is falling, so it सर is इसके minus. हाँ जी, ये वैसे yeah. कुछ नहीं, कुछ The नहीं। the rate of cooling, I mean, the rate of temperature fall is proportional to the temperature of the body and the temperature of the surrounding के difference पे. But this remains fixed by the way. So this is a variable. अगर if you introduce a constant, so let this rate be r. Okay, let this rate be r, and r is equal to dt by dt. तो आपका ये जो फॉर्मूला ये बन गया, r is proportional to, sorry, equal to minus k t minus t naught, where k is a positive constant and it depends on heat capacity of the body and nature and extent of its exposed area. वैसे तो अभी हमने इंटीग्रेट नहीं करा, हम कर सकते थे इंटीग्रेट, डी टी को नीचे ले आते, क्योंकि यहाँ पे भी वेरिएबल है डी टी और यहाँ पे टी है, समथिंग लाइक डी एक्स बाई डी वाई is proportional to x minus 2. So dx upon x minus 2 is proportional to dy. We can integrate and get it in log, because 1 by x का जो इंटीग्रल होता है that is ln x. तो वो अगले स्टेप में करेंगे, बट फिलहाल the the rate at which the temperature falls is proportional to the difference in the temperature of the body and its surrounding. Surrounding fixed है, ये लगातार चेंज हो रहा है, दिस इज अ वेरिएबल। जैसे काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम में आपने लिख दिया कि dx by dt is proportional to displacement, माने velocity is proportional to displacement, as the displacement changes the velocity changes, some hypothetical situation. So this is also known as rate of cooling, the rate at which the temperature falls, the rate of cooling.
This is your Newton's law of cooling actually. Mm. Okay. And if you plot a graph, then the graph looks like this because the rate you can see is proportional to t. So it's like a straight line. This being y is equal to uh, minus k x minus some constant number because this is fixed x minus x naught. So you can always draw a graph for the rate of fall. And when the rate is zero, that means the rate of fall of temperature is zero, then x is equal to x0, which means T is equal to surrounding temperature. So when the temperature of the body is same as that of surrounding, the rate, so this is your rate, the rate is zero. Okay, when T is equal to T naught. So this is surrounding. अब आपका सूप जो है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर तक पहुंच गया तो उसका जो वो है rate of fall of temperature is going to be zero now. It is no longer going to lose any heat. So this is your, you see this, this is at t equal to zero. Uh, the rate is minus kt zero. Okay. So this is your rate when t is equal to t naught. This is minus kt naught, the y axis पे जा रहा है. And this is your t. And as your temperature is higher, at that point your rate will be higher. The rate of uh, so so the rate itself is dependent on temperature. So if you are at very high temperature, you have a different rate. But rate is proportional to T means rate is linearly changing. The rate itself is linearly changing with the temperature. So at every instant, the rate is different. Here the rate of fall is different. And here you can see it's a straight line. ये straight line ही आ रही है actually, right? So हाँ. ये नहीं आ रही मैंने the it is not temperature independent, it is temperature dependent. So you can see the rate here is, so rate is constant actually, if you notice. Not constant, it increases linearly with the temperature. This is constant rate, right? So every, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला केस ही है ये. directly proportional wala case actually. So even the rate is a variable, but linearly changing. तो rate fixed नहीं है. जैसे कि acceleration, uniform acceleration fixed होती है. So the rate of change of velocity is fixed, right? वो वाला case नहीं है कि rate of change of temperature fall is fixed. Temperature falls at different rates at different temperatures. Even the rate is a variable, but directly proportional. Okay. So now we know dt by dt is equal to minus k t minus t naught, and dt upon t minus t naught is equal to minus k dt. And if you started with a temperature T1, for example, right? You start with the initial temperature T1. Your soup is at some initial temperature T1, Okay. and you reach some instant where your temperature is T. So let's say it took you 0 to T नॉन time. यूनिफॉर्म केस के लिए मतलब वही जो हमने अभी न्यूटन्स एरिया अंडर कूलिंग. ग्राफ, हाँ, यू नो. बट उसमें हम एक पढ़ रहे हैं कि जो इनिशियल कंडीशन है, दिस इज द इनिशियल कंडीशन ऑफ द सूप. The अच्छा. soup is at T1 and gradually at some instant it reaches T. ओके. And when we start the counting of rate, I mean temperature fall, it is at T is equal to 0. And this is at 1080. So if you integrate both the sides, you get log of T minus, sorry, T minus T naught is, so this is T1 to T is equal to minus K. This is T0 to T. And you can rewrite this as
if you put the initial conditions at t equal to 0, at t equal to माइनस के टी 0, आ जाएगा ना. t is equal to t1, right? Uh, यही था the condition. So basically, if you solve hmm, this, you will get log of t minus, because you need hmm. to put the conditions, log of t minus t naught is equal to minus kt plus log of T1 minus T naught. This is the initial temperature at T equal to 0 when the soup started cooling down. And ठीक है. this is the temperature of the soup at time instant T. Now, if you plot this graph, okay, the log of which is T minus T naught. So let's say this is log of T minus T naught versus time. This is what you get. So this is log of t minus t naught. This is t, दोनों का ग्राफ जो है इट्स अ स्ट्रेट लाइन, log of t minus t naught, the negative slope because this is minus k. So this is of the form y is equal to mx plus c. The slope intercept form. You can rewrite this because this is log. Some people prefer writing this in the form of e raised to power exponential because they are linked to each other. So ये log इस तरफ ले आओ आप. So your log of t minus t naught minus, sorry, this is t only, minus log of t1 minus t naught is equal to minus kt, and log of t minus t naught upon t1 minus t naught is equal to minus kt, and this is t minus t naught upon t1 minus t0 is equal to e raised to power minus kt. तो And दोनों then साइड for, में log ले लिया है. नहीं नहीं, ये अगर आपके पास ऑफ log of a is equal to b, right, then a is equal to e raised to power b. अच्छा, मतलब ई वो यूलर नंबर ना. हाँ, exponential. 2.303 जो Yes. भी है 2 पॉइंट हाँ, समथिंग. so t is equal to e raised to power minus kt, t1 minus t naught, and plus t naught. So you can also rewrite the logarithmic equation in exponential, which means if you know the t time, you can find the temperature starting from this temperature. The initial is very high temperature T1. This is the temperature of the surrounding, and this is the constant of proportionality. So this is your, if you want to redraw this curve and say, okay, I want to draw this exponential curve, then it is a failed. This is more common sense driven because as the time progresses, your temperature falls, right? So this is T versus T. As your temperature, as your time increases, your temperature goes down, and you obviously start at a temperature, and finally, at after some time, your temperature should become equal to that of surrounding, right? So you do touch surrounding. So this is a surrounding temperature, and at T equal to 0, you started with T1, right? This is another way of rewriting. So you have to memorize all these rules. The log rule, the exponential rule, so that you can find the temperature of a hot body losing or cooling down at any time t, starting from temperature T1 with the surrounding temperature known to you. ठीक है.
ठीक है जी. Okay. Now let's see how does uh, if you see Stephen's Boltzmann law, right? So if you see the Stefan-Boltzmann law, right? There, what we study is that the so, dt by dt is equal to a e sigma, and this is the mass. C is the specific heat, and this is T4 minus TO4. Okay. The so if you are in a situation where your temperature is not very different from the soup, I mean the hot body, which is there is a little difference between the temperature of the hot body and the surrounding. You can take approximation there. Okay. So the approximation is uh, so condition is the temperature of the hot body is not very different from its surrounding. Approximately they are same, right? एक second, I think I'll have to see this because I don't recall. What you do is you, with the help of Stefan-Boltzmann law, can also derive Newton's cooling law. Derivation होती है कि how do you derive so approximation आ जाती है अगर ये condition हो ना, ये वाली. So the rate at which you're dissipating heat, right? You are a body of mass m, but obviously you're dissipating using radiation. Radiation is a way to dissipate heat in Stephen's law. So वो जो ms theta होता है वो d theta by dt, the the heat per second, uh, वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इज इक्वल टू ए ई, वो वही वही वाला फॉर्मूला है, ये डी टी बाई डी टी में लिखा हुआ है, और ये मास ऑफ द बॉडी और स्पेसिफिक हीट यहाँ पे लिख दी है इसने. अब इसके अंदर एक कंडीशन ये होती है कि ये जो T4 माइनस T0 है, इफ दिस इज ट्रू दैट T इज वेरी क्लोज टू T नॉट, द टेम्परेचर डिफरेंस इज, देन दिस एक्सप्रेशन dt by dt reduces to the uh, expression A E sigma upon mc T naught cube multiply by uh, delta T into यहाँ पे 4. So I think ये मेरे को याद नहीं आ रहा. How do you have to open this bracket, या T square minus, you have to write T square minus TO square into TO square plus TO naught square. फिर ये आता है T minus T naught is equal to T plus T naught, and this is T square plus T naught square. So since this difference is very small, I think this is written as delta T. ये वाला जो difference है delta T, and this becomes this approximation. Okay, this becomes, I think, T naught, and this becomes, sorry, this becomes 2T naught, and this becomes 2T square. Uh, because T is very close to T naught, so both are equal. So this becomes delta T multiplied by 2T naught into 2T naught square, which is what you see as 4T naught cube surrounding, and delta T is the temperature difference between them. So the rate of cooling is derived from Stefan-Boltzmann law. So the rate of cooling is dependent on the temperature difference between the
surrounding and the body, which is what Newton's law states. If you see, this is what Newton's law of cooling said, right? That the rate of fall of or rate of cooling is proportional to T minus T naught at any instant. So the Stefan-Boltzmann law also reduces to Newton's law of cooling. अच्छा. But when is it applicable? Only when you have the body's temperature being very close to the temperature of the surrounding. That's a bare minimum condition for you to do it. ठीक है. ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से हमने डिराइव कर लिया ये. Newton's law of cooling. Stefan Stefan. Boltzmann law, Newton's law of cooling. PD. I'm just seeing. There is a there is definitely a connection between the two. So at lower when the temperature difference is not very high, the Newton's law of cooling emerges from Stefan. एक फोरियर लॉ ऑफ वो भी है. बाय गॉड. Fourier. एक और लॉ है लेकिन हमारे कोर्स में नहीं है फॉर्चुनेटली. गुड फॉर अस. फंस जाते नहीं तो. एक जो चीज हमने छोड़ दी एक्चुअली मुझे नहीं लगता वो आई मीन शुड नो और इज दैट इम्पोर्टेंट. जस्ट अ डेफिनेशन आई थिंक शुड बी इनफ. छोटी क्लास में पढ़ते हैं ना वो. कंडक्शन, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन, द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, राइट. कन्वेक्शन इज ऑल्सो देयर. कन्वेक्शन शायद जो ये थर्मस वगैरह होते हैं दे आर बेस्ड ऑन इट. हाँ. So the convection is the transfer of heat from one place to another due to the movement of fluid.
So it is very dominant in liquids and gases. Transfer of heat from one place to another due to movement of fluid or gas, या मीडियम के एक्चुअल मूवमेंट से जो आपका हीट ट्रांसफर है. Okay. So let's पहले तो हमें फॉर्मूला फिटिंग सीखनी पड़ेगी सो दैट वी आर कंफर्टेबल विद द वेरिएबल्स. इसके न्यूमेरिकल्स कितने होंगे? बहुत थोड़े से हैं. जनरली जब क्वेश्चन आता है जेई में तो वो मिक्स होके आता है. द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ एंड वे जैसे हमने करा था वो वेन डिस्प्लेसमेंट दोनों मिक्स होके आ गए थे. टेम्परेचर उससे निकाल लिया, वेवलेंथ उससे निकाल लिया. ऐसे ही दोनों ऐसे ही जो क्वेश्चन होता है मिक्स करके देते हैं तीनों लॉ को. या अच्छा। कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड होते नहीं है. सो लुक एट दिस. टाइम निकालना है एंड टी विच मीन्स योर फोकस इज टी एंड 80 to 60 डिग्री है. सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया हुआ है 30 डिग्री. सो यू नो टी नॉट ऑल्सो. फर्स्ट राइट ऑल द वेरिएबल्स विच आर नोन टू यू. लुक एट द फॉर्मूला. हम्म, कॉपी डाउन द. ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमने सही रहेगा क्योंकि इसमें लॉग है ना, ये वाला लॉग. इसमें ई टी रेस्ट सीधा पावर डल एक्स, जाएगा. ई रेस्ट पावर एक्स ना? हाँ, प्लीज इंश्योर एवरीथिंग इज इन केल्विन हेयर. ठीक है। नहीं नहीं, ई रेस टू पावर नहीं करना क्योंकि टी फिर मुश्किल हो जाएगा बहुत. सर फिर ये वाला लॉग बेटर है. निकालना नहीं आता मेरे को, भूल गया लॉग लॉग टेबल। टेबल. लॉग टेबल देखने आना चाहिए बस. हाँ, वही नहीं आ रहा ना, भूल गया मैं। आई थिंक इसमें यू हैव टू कीप एवरीथिंग इन. नहीं, जरूरी नहीं है. डिफरेंस है तो केल्विन की जरूरत नहीं है. यू कैन कीप द डिफरेंस. नो नीड टू कन्वर्ट. बट आइडेंटिफाई द इनिशियल टेम्परेचर इज 80 degrees and after 10 minutes it becomes 60. T naught is known and ऊपर शायद वो आता है इनिशियल टेम्परेचर न्यूमरेटर हम्म, में एट टी इक्वल टू जीरो वाला. और नीचे हाँ, जो आता है वो टाइम टी बीतने वाला आता है. ठीक। एंड यू डोंट नीड टू कीप लॉग ऑफ ई. यू कैन कीप लॉग 10 ऑल्सो. कितना आया? बट मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेना लेफ्ट पे. 600 मिनट, 600 सेकंड। सराउंडिंग इज, आई थिंक दिस इज इनिशियल टेम्परेचर, दिस इज नॉट हाँ, सराउंडिंग. टी नॉट है। हाँ, तो टी नॉट इज सराउंडिंग राइट हमारे फॉर्मूले अच्छा, में. दिस इज सराउंडिंग. सराउंडिंग ओके। तो टी माइनस। टी इज एट एनी टाइम टी. टी वन इज द इनिशियल. अच्छा, टी वन माइनस टी नॉट। हाँ, टी नॉट इज अगेन सराउंडिंग. ये टी इक्वल टू जीरो वाला है टी वन. ठीक है। यू शुड राइट टी वन एट टी इक्वल टू जीरो. तो ये पता चल गया जी. एट टी इक्वल टू जीरो ये था. फिर टी इक्वल टू 10 पे कितना हो गया? टी इक्वल टू 10 पे। मतलब इंटू 60, 600 सेकेंड पे 60 डिग्री. 60 डिग्री। दैट्स योर टी एट इंस्टेंट टी 60. ठीक है. सराउंडिंग टी नॉट होता है 30 डिग्री. पहले तो इसकी इक्वेशन लिख लो. के तो पता नहीं है तो डिवाइड होके हट जाएगा. और और निकालना है कि 45 डिग्री इट विल टेक टू कूल फर्दर टू 30. तो 60 तक तो पहुंचा ही दिया. तो हमें टी निकालना है बेसिकली जब ये
45 डिग्री तक पहुंचाने के लिए 10 मिनट में। सो यू विल हैव टू राइट द इक्वेशन ट्वाइस, एक बार 80, 45, और ये टी निकालना पड़ेगा उसके इसके अंदर। पुट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू फर्स्ट इसके अंदर, लॉग में, लॉग ऑफ T1 - T, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, लॉग ऑफ T - T, नॉट सॉरी, 60 माइनस 60 - 30, 30। और नीचे जो है शायद 80 - 30 है। ठीक है। हाँ, लॉग, दोनों लॉग, लॉग ऑफ दिस। इसका लॉग इक्वल्स टू माइनस के टी। तो ये log 3/5 आ रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू -k × 600। -600 के। ठीक है, नाउ राइट द सेम थिंग, बट t इज नॉट नोन, बट नाउ द यू हैव टू टेक इट टिल 45 डिग्री ना, 45 डिग्री तक लेके आना है, 60 तक नहीं लेके आना, तो ये 45 होगा। सब कुछ सेम रखना है, सिर्फ t निकालना और यहाँ 45 डालना है दूसरी इक्वेशन में। सो 45 - 30 × 80 - 30। ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो भाई, आ रहा होगा वैसे। ये log क्या लिखा हुआ है? dt/dt। अरे ये तो डेरिवेशन में यूज हुआ था शुरू में, यहाँ पे सॉरी, टी सॉल्व लिखना पूरा था। इंटीग्रेट करने के बाद ये इक्वेशन बनी थी लॉग की। अगेन हाउ डू यू गेट दिस? व्हाट इज दिस? अरे ऐसा कुछ भी नहीं लिखना, वो पूरा सॉल्व हो गया। पहले लॉ लिखा, फिर उसको बस इंटीग्रेट करके लॉग में ले आए। ठीक है, 1, ये व्हाट इज दिस, कट इट, सॉरी, जस्ट राइट लॉग ऑफ 45 - 30 log। ऑफ अच्छा, 45 - 30। अब 45 डिग्री तक लेके आना है, टाइम नहीं पता कितनी देर है, 15, हाँ ठीक है, ठीक है 15, ओके नो प्रॉब्लम। 15/50 मतलब 3/10। इज इक्वल टू -600, सॉरी -KT, क्योंकि हमें पता ही नहीं है टी कितना टाइम लगेगा। टी इज टू बी फाउंड आउट फॉर 45 डिग्रीज। ठीक है। तो उनको मैं कह रहा हूँ डिवाइड कर ली। कर दो। तो log 3/5 log 3/10। is equals to 600/t। यस, तो t आ जाएगा हमारा 600 × log 3/10। राइट, सर सॉल्व इसकी इट एंड वैल्यूज गेट द बता दो क्या आंसर। है। मुझे भी नहीं पता। इफ दिस इज टू द बेस 10, जस्ट फॉर योर नॉलेज, देन log ऑफ 10 to the base 10 इज log 1। सो ऊपर तो सिर्फ आ गया log 3
-1 और नीचे आ गया log of 3 minus log of 5. Let me see the table. Log of 3 to the base 10. Log of log 3. What is the value of log 3 is 0.47. I hope it is not to the base 10 है. What is the value? Okay, 0.4771 to the base 10 ही है ये वाले. ये तो -0.5। अच्छा, log 3/10। ये log 3 माइनस log 5 होगा ना नीचे. हाँ, लॉग क्या कहते हैं, थ्री log बाय 5 फाइव आ जाएगा। ये तो माइनस है, -0.22। ये आ गया ना 0.477 और ये इसका डिफरेंस. तो -0.52 ऑन -2 52/22 आ गया. 52/22 बन गया ना. इंटू 2.36, सर 1416 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली। 14 इसका आ रहा है 13 मिनट 56 सेकेंड 13.5. ज्यादा नहीं आ गया लगता है। इनका आ रहा है 0.30/0.22. मैंने कैलकुलेटर यूज किया है। अच्छा. log 3 माइनस log 5. सो इसको कन्वर्ट करो ना 60 से डिवाइड करते हैं. 20 20 मिनट. आंसर कुछ और आ रहा है यार. व्हाट इज द डिफरेंस. बिल्कुल सही करा है. कोई गलती नहीं करी. इनका गलत है. इन्होंने ना ऊपर नीचे की गलती है क्या. एक सेकेंड लेट्स सी द डेरिवेशन अगेन एंड द फॉर्मूला. हमारा फॉर्मूला इसके अंतर है क्या. एक नेगेटिव साइन का अंतर है. दिस इज द फॉर्मूला ही हैज रिटन. एक सिर्फ फर्क ये लग रहा है मुझे कि जो चीज़ हमारी न्यूमरेटर में है लॉग में. जस्ट कंपेयरिंग. अच्छा लार्ज कर लेता हूँ. आई डोंट थिंक सो कि डेरिवेशन कैसे. ये रहा. हमारा क्या फॉर्मूला है. हाउ इज इट डिफरेंट है. P इज इक्वल टू. ये तो यार
एक मिनट. न्यूटन्स लॉ लीड्स टू. और क्वेश्चन करना पड़ेगा. लेट अस सी एनसीईआरटी आल्सो. मैं भी ये लिया था यार, माइनस साइन लिया था. रेट ऑफ फॉल. फिर एनसीईआरटी से कंपेयर कर लेते हैं. मेरे हिसाब से तो हमने जो पढ़ाई करी थ्योरी की, दैट वाज परफेक्ट. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो शुड आई मैच्ड यार, मतलब पता नहीं क्या हो गया. अच्छा. आई थिंक हमने एक चीज इंट्रोड्यूस नहीं करी, विच वाज स्पेसिफिक हीट एंड ऑल दैट, इसीलिए फर्क. उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए था. लॉग वाला तो इसने दिया है, लॉग वाला. लॉग वाला भी दिया है. पर्टिकुलर रेंज. ओके, लेट्स ट्राई दिस. क्या फर्क है? छोटी सी हमें करेक्शन करनी पड़ेगी, तो वो भी. लेट्स ट्राई दिस. नाउ द टेम्परेचर रेंज इज वेरी स्मॉल. 94 to 86 and 71 to 69. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट विद अ केविएट की जो टेम्परेचर का डिफरेंस है एनवायरनमेंट वगैरह में, दैट इज नेग्लिजिबल एक्चुअली. राइट, सो यू कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टाइम, dt बाय dt, कैपिटल dt अपॉन dt. सो पहले टेम्परेचर गिरा 94 to 86, राइट, in 2 minutes. So this will be for what?
8 डिग्रीज 120 सेकेंड में, और दूसरी बार टेम्परेचर कितना गिर रहा है? 71 to 69। The external temperature is 20 degree. ये कोई अप्रोक्सीमेशन ट्रिक है यार। And filled with hot food cools from 94 to 86 in 2 minutes, ठीक है। When the room temperature surrounding का दे रखा है, how long will it take to cool from 71 to 69? लगा तो इसमें सकते हैं वो रूल, लेकिन one of the key characteristic is the surrounding, and the temperature difference is very small. The 2 डिग्री टेम्परेचर गिरा है सिर्फ, और एक में आई थिंक इट हैज फॉलन ओनली बाय 8 डिग्रीज, एंड दैट टू इन 8 मिनट्स। इन्होंने जो अप्रोच करा ना, लेट मी शो इट टू यू, दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन, इट सीम्स दिस इज नॉट, एंड दिस इज ओनली एप्लीकेबल आई थिंक फॉर, इट्स मोर ऑफ एवरेज रेट ऑफ कूलिंग देन इंस्टेंटेनियस। ये ट्रिक भी यूज होती है कई बार। दिस इज another trick in Newton's law of cooling। पता थी बट मैंने डिस्कस नहीं करी। So see the answer. So what he says is your average food was at what temperature? 90 degree, right? Mhm. You cooled down from 94 to 86. Your average dish was at 90 degree, and your external temperature is, so you were at 20 degree above the room temperature, 70 degrees. The room temperature is this. So change in temperature is equal to K delta T, which is your so dish का temperature surrounding, ये तो basic हो गया ना, this is dt by dt, हम्म। right? This is dt by dt is proportional to K T minus T naught। ये तो basic law है ना हमारा। तो इसने क्या करा कि ये जो change in temperature निकाला है, ये वाला 8 डिग्रीज चेंज हुआ 2 मिनट्स के अंदर, राइट, इज प्रोपोर्शनल टू के। और यहाँ पे इसने क्या करा, ये क्योंकि 2 मिनट में वेरिएशन हुई है 8 डिग्रीज की, तो इसने वो 2 मिनट की एवरेज ले ली कि एवरेज टेम्परेचर 2 मिनट में कितना था। अच्छा जी 90 था, तो इसने ये यहाँ पे ना वो हर इंस्टेंट पे अलग नहीं लिया, और 2 मिनट की ड्यूरेशन का एवरेज ले लिया 90, 86 प्लस 94 डिवाइडेड बाई 2, और माइनस टी नॉट कर लिया विच इज 20। ये जो टेम्परेचर होता है ये इंस्टेंटेनियस होता है, इफ यू सी द डेरिवेशन एट टाइम टी। यहीं से तो स्टार्ट होता है ना न्यू जो लॉ होता है, स्टार्ट फ्रॉम हेयर। सबसे टॉप पे देखो कहां से लॉ शुरू हुआ था ये। व्हाट इज द फर्स्ट लाइन यू राइट इन दिस लॉ? दैट द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट, where T is the temperature at time T। तो इसने ये जो टाइम T की जगह एवरेज ऑफ 2 मिनट्स डाल दिया।
एनी डाउट्स इन योर माइंड? नहीं। सिमिलरली क्योंकि 2 डिग्री सिर्फ टेम्परेचर बदला है दूसरे केस के अंदर, राइट? इट इज 69 to 71, राइट? 69 to 71 था, उसका भी एवरेज इसने 70 डिग्री ले लिया, और जो फॉल हुआ है उसको इसने लिखा 2 डिग्री, द डी टी। एंड हाउ मेनी मिनट्स ये हुआ है जी, ये निकालना है कि सो टी, दिस टी हैज टू बी फाउंड आउट, बट के डेल्टा टी इज द एवरेज टेम्परेचर इज 71 and 69, 71 and 69, 140 और 70 minus 20, ये आ गया 50. Instead of assuming it to be a straight line or something, he has taken an average t in this formula. This is another way to solve this problem. You can also solve, so this thing, ये जो निकला, ये average rate of cooling निकला, instantaneous नहीं आया ना फिर. हाँ जी। If you're taking average of the temperature in 2 minutes, then your rate will also not be instantaneous. It will be an average. So you can supposingly somebody says, yeah, I don't want to use calculus. I don't know what is this dt by dt is proportional to minus k, t minus t naught, and then integrating and all of that. मुझे समझ में नहीं आता ये, right? I don't want to use calculus. I want to use some other method. Then the method is a method of averages. Obviously, average will not give you accurate values. वैसे तो कैलकुलस पे एक्यूरेट वैल्यूज नहीं दे रहा, वो भी हाँ, बट अप्रॉक्सीमेटिव। कैलकुलस बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, मतलब अगर आपने कैलकुलस नहीं यूज करना तो फिर आप एवरेज को यूज करो। आप फिर उस टाइम पीरियड का जो जहां से लेके जहां तक ड्रॉप होए एक टेम्परेचर बना लो उसका, और बोलो जी हम तो लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कर रहे हैं, बट वी विल नॉट यूज द instantaneous approach, calculus approach. We will use the average approach. भाई ये भी तो, ये अगर मैं बात करूं, ये कूलिंग क्यों एवरेज है? बिकॉज दिस इज 94 एट सम टाइम minus 86 within 2 minutes, right? जबकि कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से 94 से 93.999 is a delta t in some time interval, which could be 0.001, 0.001, and then from 93.999 you may fall to 93.998 in 0.002 seconds. So every instant your rate is changing. That's calculus for you. If you don't want to use calculus, the other option available to you is the law of averages. Use average. बोलो जी फिर हम नहीं करेंगे, फिर हम हर पॉइंट को नहीं कंसिडर करने वाले। हम बोलेंगे जी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसकी एवरेज लो, दैट इज द एवरेज कूलिंग रेट, और इसका एवरेज टेम्परेचर्स का इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। खत्म। So you have two options. Whenever you see a numerical, just read the numerical carefully and see what approach will be suitable. अपने आप ही you can decide it. बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा मुझे लगता है बॉडीज के अंदर ना, दोनों रूल अलाउड होंगे, अनलेस वो कहीं लिखा है कि you have to use calculus. I think average will also work out. ठीक है, हमने कैलकुलस यूज कर दिया। कैलकुलस भी यूज कर सकते हो, वो भी यूज कर सकते हो, और दोनों both should work out. I think there is no hard and fast rule. If जनरली आई थिंक जो मैंने क्वेश्चंस देखे न्यूटन्स कूलिंग के, आई थिंक दे मतलब दोनों ही चलते हैं, both ठीक are है। used. The other, I think, correction we need to do is on the law itself. I think when we started with this law,
We only had calculus approach even in our mind. What we forgot was probably, I think, the K constant. We have taken it as the depending on the heat capacity of the body and the nature and extent of its uh, exposed area. तो हमने रेट को सीधा लिखा था के टी माइनस टू, बट इफ यू सी द जब स्टीफन बोल्ट्समैन की भी हमने डेरिवेशन करी थी, तो अचानक ही उसके अंदर एक एमसी आ गया था, इफ यू सी नोटिस, राइट, एम इन टू सी. बट इफ यू नोटिस इट, द एनसीईआरटी में जो लिखा है इन्होंने, I will just show you what he has written in NCERT also. This, right? So the Newton's law of cooling, d theta by dt, हमारा भी k था जब हमने स्टार्ट करा था, और हमारा टेम्परेचर डिफरेंस भी था. एक हमने नीचे mc नहीं लिखा, ये एक्स्ट्रा, m into c, where m is the mass of the body and c is the specific heat of the material. Although we did mention here कि it is dependent on the the heat capacity of the body and extent of its. Right? So the formula, I think, which you need to memorize is this, क्योंकि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को जो मतलब लिख रहा है उसके अंदर ही इज इंट्रोड्यूसिंग मास एंड स्पेसिफिक हीट. ऐसा मैंने कभी क्वेश्चन देखा नहीं जहां पे ये यूज हो रहा हो एक्चुअली. सीन एनी. देखे जरा और कोई क्वेश्चन अगर. अगर आपको इफ यू फाइंड दैट द सराउंडिंग एंड द, वैसे तो वो रेडिएशन के लिए एप्लीकेबल है स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, और उसमें जो T4 माइनस T04 करते हैं ना, यू कैन यूज, if they say what is the rate at which this body is losing heat वाला जो concept है, if you find that the surrounding and the body are at roughly around in the same range, very close to each other, you can use Newton's law of cooling also. It works. दोनों ही चल जाते हैं. So if you have to calculate the net heat lost per unit area per second, instead of using the Stefan-Boltzmann law, you can also use Newton's law of cooling. दोनों ही चल जाएंगे. Let's take an example. So, for example, you have two identical spheres are available to you. Okay. These are two identical spheres, A and B, and they are suspended in an air chamber. So they are suspended in an air chamber which is at 50 degree. So we know surrounding is at 50 degree. You have to find the ratio of the heat loss per second. Heat lost per second from the surface of the sphere. This is you have to find this. It is given to you that this is at 60 degree and this is at 55 degrees, right? So do you notice that the temperature difference is very small surrounding का, है ना? हाँ जी. If you had used Stephen's law, you would say the heat lost per second per unit area is sigma E
T4 minus T naught 4. And you would have said this is my heat lost per second per unit area. This is my heat lost. But if you use Newton's law, which is mc dt by dt is proportional to k times the difference. Because the temperature difference is very small, use this. इसको यूज कर लो. रेशियो निकालनी है ना वैसे भी तो तो हमें इनकी रेशियो ही निकालनी है वैसे भी. क्वेश्चन इज नॉट टू फाइंड एब्सोल्यूट, क्वेश्चन इज टू फाइंड द रेशियो ऑफ हीट लॉस्ट. सो इसकी इसकी जो H1 आएगी, इसकी H2 आएगी. तो H1 कितनी होगी अगर मैं बात करूं न्यूटन्स के कूलिंग के हिसाब से? K टाइम्स 60 माइनस 50. और इसकी कितनी होगी? K टाइम्स 55 माइनस 50. If you divide these, what will happen? 2, right? Answer. So the heat lost per unit area per second from Newton's law of cooling is this much. Now let's change the situation. So जो मैं बता रहा था ना, मैं approximation. Now what you do, the temperatures are not 60 and 55 degrees, but the temperatures are huge. So this is 250 degrees and this is 200 degrees. Now don't use this Newton's law. Use this Stefan-Boltzmann, because the surrounding and the body have huge temperature difference between them. Got it? कब कौन सा लगाना है? सर हो गया क्या? हो गया भाई, क्या हो गया? चैप्टर सब पक चुका हूँ अब. हाँ वो हो गया. Chapter is done and dusted. Just I'm seeing if क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं. आया खत्म ही हो गया है. A tennis ball is dropped, a wire is dropped up at two charges, liquid and a block, parallel rays, metal surface, lambda planet of radius, a capillary of different shape, a movable piston, spray gun, center loop, 4 charges, combination of lenses, blocks, person lifts a jar. Person lifts a jar and drops it, and the jar breaks. वाह, सबसे बढ़िया. The story ends. Thinking. सर जार गिरने में भी कितनी फिजिक्स लगा देते हैं, लग जाती है. कि जार ऊपर से गिरेगा, उसके अंदर ऊपर जब उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, फिर वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, फिर जो नीचे कांटेक्ट में तो इम्पल्स लगेगी, फिर जार के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे.
Too much physics. हमारे स्कूल में हो गया चैप्टर खत्म? खत्म तो हो गया। उन्हें तो सर पर हमने कुछ ज्यादा ही घुस गए ना, वरना हमारा भी 2-3 दिन में खत्म था ये चैप्टर। क्या ज्यादा सारे टॉपिक नहीं कवर करोगे? नहीं, उन्होंने काफी टॉपिक डिलीट भी हो गए थे। वो जैसे कि अपने जैसे वो क्या कहते हैं, रेजिस्ट वो थर्म हीट वाला बताया था, हीट रेजिस्टेंस, के बिना तो यू कांट स्टार्ट जेई क्वेश्चन। है ना। तो उन्होंने वो नहीं करे ऊपर से, और वो ज्यादातर ऊपर ऊपर से कराते हैं स्कूल वाले। वही तो मैं कहता हूँ, मैं गलत जगह पे हूँ। खोलो स्कूल, कुछ ना करो, फीस तो देने आएंगे लोग माथा टेकते हुए। एडमिशन दे दो जी, एडमिशन। वहाँ पढ़ाओ और फीस भी लो। हम्म। सबसे बढ़िया काम है दुनिया का। तो है न्यूमेरिकल इसमें? उस पे ज्यादा है। एक अच्छा बढ़िया। वैसे तो यू कैन आंसर दिस वर्बली, बट इट विल स्टे विद यू। हाँ जी। क्वेश्चन हो जाते हैं ना तो थोड़ा लगता है कि कुछ कर लिया भाई। खिला दो। हाँ जी, क्या आंसर है? स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये फेल टू लोड हो गया। तो आ गया। एक मिनट, लेट मी गो टू नेक्स्ट पेज देन। देखो अब हुआ। फेल हुआ टू लोड? लोड। बड़ा तंग करता है ये कई बार ना। हाँ, डोंट टेल फेल इट्स टू फेल। लोड।
I'm just looking at exemplar. Exemplar? Very advanced. एक क्वेश्चन नहीं है मतलब जो स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्होंने पूछा हो कि यार ये लो आराम से कर लो, हर चीज के अंदर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट डाल देते हैं. हम वेरी यूनिक क्वेश्चन. एनसीईआरटी में है क्या कोई? नहीं, देखता हूँ एनसीईआरटी भी चेक करता हूँ. दिस अपीयर्स टू बी सम यूनिक क्वेश्चन है. लोड हुआ? नहीं. हाँ, नहीं नहीं हुआ तो इसे बंद कर देता हूँ. बंद कर रहा है ये. इसकी असाइनमेंट मिली है कोई? लेट मी चेक। रेडी हो जाएगा. एक मिनट जरा, एक मिनट दो, चेक करके बता। हम्म, हम्म, सर नहीं है। क्या असाइनमेंट इसकी तो नहीं आई है। ये क्वेश्चन आ एक गया? मिनट सर, बस एक मिनट। आया हुआ है. तो फिजिक्स का कोई पेपर है? सैम्पल पेपर आया है। क्या कराया ये? इसमें देख लो, उसमें अगर हो सकता है तो। बाकी तो और कुछ नहीं मिला है, इतना ही था। क्वेश्चन कॉपी हो गया ये वाला? हम्म, क्वेश्चन कॉपी करा है मैंने. हो गया।
न्यूटन्स। अच्छा, नहीं यार, इसमें एग्जैक्टली। एक भी क्वेश्चन नहीं है इसके ऊपर। एक ही मिसिंग है। बहुत सारे दिए हैं थर्मोडायनेमिक्स पे। अगला थर्मोडायनेमिक्स है ना, जो चैप्टर करेगा अब अगला। यस। वो भी लंबा है क्या, इसके तरह? हम्म। तो मैं पूछ क्या रहे हैं ये? न्यूटन्स लॉ वो MC डेल्टा टी वाला लगाना है। एमसी डेल्टा टी। Water equivalent of two similar is 10 grams each. They are filled with 350 grams of water and 300 gram of liquid. The time taken by the water and liquid to cool from 70 to 60 degree is 3 minutes and 95 seconds. अच्छा, MC नीचे लिखना है के। अच्छा, दोनों का अलग अलग टाइम है। The time taken by water is 3 minutes and that of the liquid is 95 seconds. नहीं आ रहा ये तो, अजीब सा न्यूमेरिकल है। क्या? न्यूमेरिकल बड़ा वो अजीब सा है, नहीं समझ आ रहा मेरे को। क्यों? लुक एट द फॉर्मूला ना, जो अभी हमने एनसीईआरटी से देखा था। अरे। MC नहीं था उसके अंदर, MC डेल्टा टी। के हम्म। नीचे MC लिखना है ना। के एमसी डेल्टा थीटा। हाँ। वो लिख दिया। 70 to 60 है लिखा है। एक्सपेरिमेंट भी न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का है। बहुत बढ़िया, द इन्फॉर्मेशन है। कंप्लीट हिंट इज गिवन। ये जो मैंने दे रखा है, तीन 350 ग्राम और 300 ग्राम पानी है, तो कर। मास M इज नोन। बस। आई अच्छा, थिंक तो इनका रेट ऑफ कूलिंग अलग है। पहले तीन सौ एक, पचास का निकालेंगे फिर। पहले पानी का निकालेंगे। पहले पानी पानी के लिए फॉर्मूला लिखना है न्यूटन कूलिंग। फिर लिक्विड के लिए लिखना है, 2 बार लिखना है फॉर्मूला। अच्छा, dt/dt, लेफ्ट साइड पे dt/dt। इधर मैं dt बाई dt लिखूं? हाँ, यही तो लॉ है। ठीक है, लिख दिया मैंने। ये था वो सराउंडिंग। इसमें सराउंडिंग क्या है? इट इज इन अ कैलोरी मीटर। हम्म। एलिमेंट का टेम्परेचर ही में इसका टेम्परेचर होगा। बट सराउंडिंग कैसे है मतलब? कौन सी सराउंडिंग हो जाएगी? ये डेल्टा थीटा कैसे निकलता है? टी माइनस टी नॉट। टी 70 माइनस टू टी नॉट सिक्सटी होता है आ रहा है ना, डेल्टा थीटा। 70 to 60। सराउंडिंग नहीं दिख रहा है इसके अंदर कहीं पे यार। जीरो मान ले। कहीं लिखा नहीं हुआ है तो रूम टेम्परेचर मानना पड़ेगा। 70 to 60। पता नहीं क्या। कैलोरी मीटर का क्या यूज करना है? टू सिमिलर कैलोरी मीटर्स ऑफ 10 10 ग्राम ग्राम्स कैलोरी मीटर।
then calorimeter will also absorb some heat. It will also take away. It is not 350, then it is 360 हीट लेगा grams. पर वो 360 वाटर इक्विवेलेंट है ना उसका. 360. वाटर इक्विवेलेंट पढ़ा था ना हमने, क्या होता है वाटर इक्विवेलेंट. ओके 360 ग्राम हो गया यहाँ पे. फिर सी ऑफ वाटर दिया नहीं हुआ, नहीं वो तो दिया हुआ है. अच्छा, सी ऑफ वाटर इज टेकन टू बी 1. ये सर डेल्टा थीटा. टी माइनस टी नॉट, और हम हमें ये कर टी लेते नॉट हैं ही ना, नहीं पता है. इसको एवरेज ले लेते हैं ना. इसका डेल्टा थीटा में जो टी होता है, हम्म या वो ले लेते हैं 70 + 60 डिवाइडेड बाय 2. तो वो हो जाएगा 70 + 60 130, 65 हो जाएगा वो. और रूम सराउंडिंग का टेम्परेचर टी ले लेते हैं, टी नॉट. और ये जो ले लेते हैं 65. हाँ 65 क्यों? एवरेज, वही एवरेज अप्रोच. एवरेज, कैलकुलस नहीं अच्छा. लगा रहे ना. ठीक है. लेट्स फिर नॉट अप्लाई dt बाई dt कैलकुलस. लिखने का कोई पॉइंट नहीं है फिर. क्यों नहीं है? द टेम्परेचर हैज फॉलन फ्रॉम 70 to 60. सो 10 डिग्री तो डिक्रीज हुआ है इन 3 मिनट्स. तो 10/3 मिनट्स या 10/180 सेकेंड्स. वाटर का जो रेट है दैट इज 10 डिग्री डिवाइडेड बाय 180 सेकेंड्स. लिखने का क्यों नहीं फायदा? न्यूटन्स लॉ के दो साइड होते हैं, राइट साइड तो होता ही नहीं सिर्फ उसका. 65 माइनस टी नॉट. दोनों में ही लगेगा. क्योंकि एक 310 और एक 360. यहाँ पे, बट यू हैव नॉट रिटन द लेफ्ट हैंड साइड ना. कहाँ है लेफ्ट हैंड साइड? क्या क्या करा? वेयर हैव यू रिटन dt by dt फॉर वाटर? नॉट हाँ, नहीं लिखा है मैंने. लिखना चाहिए ना कि कितना फॉल हुआ उसका टेम्परेचर. 10 डिग्री हुआ इन 3 मिनट्स, तो रेट ऑफ फॉल कितना हुआ? 10 डिवाइडेड बाय 180. ठीक है. बस. अभी तो देखा था एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन. अब लिक्विड के लिए सेम. एंड वेयर इज सी? सी ऑफ वाटर इज इनटू 1. चलो ठीक है. नाउ राइट इट फॉर द लिक्विड. कोई दिक्कत आ रही है क्या समझने में? नहीं. Liquid has also undergone the same drop in temperature but in different time. डिफरेंट टाइम. क्यों दिया नहीं हुआ 95 seconds? हाँ हाँ. Why are you writing गलती से लिख दिया 95? था. 65 माइनस ये टी नॉट नहीं होता. हाँ, वो तो सेम ही रहेगा. हम्म. Where is your C in the formula? ये C का है लिक्विड का. C लिक्विड जो निकालना है. Yeah. I think it water equivalent calorimeter. I hope you have done it correctly. ये जोड़ना. Solve it now. हाँ, इसको डिवाइड कर लेगा. हम्म. दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दे. और क्या चॉइस है यार?
दिस इज योर सी। कोई मैच कर रही है चॉइस? मैं वरी 19/31। नहीं मैच कर रही। 180 और 2 तो कट गया, ये 0.6। है चॉइस है। 0.6। 0.6 है आंसर। छोड़ना। We'll have to search this question to। विल सर्च इट लेटर। में तेरे को पॉइंट पता? सिक्स ही है। आई एम श्योर 0.6 है। ले भाई कंफर्मेशन तो देख ले। तो ठीक है, यू आर श्योर? न्यूटन्स कूलिंग एक्सपेरिमेंट। तो दिस इज द वे यू फाइंड द स्पेसिफिक हीट एक्चुअली, और कोई तरीका नहीं है आपके पास। 10 पहले पानी लेना कैलोरी। होता है और फिर दूसरा लिक्विड लेना होता है और उनको डिवाइड कर देना होता है, बस यही होता है मेथड। लेट मी जस्ट शो यू द मेथड ऑल्सो। व्हाट इज द मेथड बीइंग यूज्ड? ये रहा कैलोरीमेट्री। मेथड इज इन कैलोरीमेट्री। सर 0.6 ही है। 0.6 है। हम्म। ठीक है। प्लस डब्ल्यू करना था 10 ग्राम्स दोनों में। वो मिसगाइड करने के लिए दिया हुआ था कि बच्चे 10 ग्राम ऐड ना करें तो कुछ और ही आंसर आ जाएगा। ये रहा। दिस इज व्हाट यू हैव डन एक्चुअली। ये जो वाटर है ना डब्ल्यू, हम्म। ये रेट ऑफ कूलिंग ऑफ वाटर हो गया, प्लस कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट डाला है हाँ। और डिवाइडेड बाय टाइम करा हुआ है, और जो दूसरा लिक्विड है उसको भी सॉल्व करने के लिए ये करा हुआ है, T2 से डिवाइड करा हुआ है ठीक है। और S निकाल लिया फिर। बट उसमें भी देखो प्लस डब्ल्यू करा हुआ है। हम्म। वाटर में भी करा हुआ है और लिक्विड में भी करा हुआ है, दोनों में करा हुआ है, सेम टेम्परेचर फॉल है। ठीक है। मेथड भी है कोई कैलोरीमेट्री में, किसी भाई किसी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था। ठीक है जी, चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू मतलब। अभी तो बेटा थर्मोडायनेमिक्स शुरू होने दो। सर फिर सिलेबस कब तक निपटेगा? बारह निपट जन जाएगा। कब है तुम्हारा पेपर? 12 फरवरी है। थोड़ी थोड़ा कट शॉर्ट करना पड़ेगा। तुम्हारा सिलेबस स्कूल में खत्म हो गया? नहीं, तो नहीं हुआ, सॉरी। वो किस में? उन्होंने वेव्स और ऑसिलेशन शुरू भी कर दी। ठीक है, थोड़ा सा हम हम थोड़ा कर्सरी कर लेंगे। हम अभी तक थर्मल प्रॉपर्टीज पे अटके पड़े थे। ठीक है, वो थर्मोडायनेमिक्स के लिए भी जरूरी है, आगे के लिए भी जरूरी है। थोड़ा गहरा करा हमने इसे। चलो ठीक है जी, थोड़ा कम कर लेंगे उसको। सी यू टुमारो। कल कितने बजे? अच्छा कल तो छुट्टी है, पार्टी पे जा रहा हूँ मैं। मंडे मिलते हैं फिर।